Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our Legal Masters, where we're going to be discussing legal issues, and it's going to be related to anything you feel that is related to the law, or anything what you feel you want to discuss with it, but must be pertaining to the legal issues. And last week we had a number of calls regarding some of the spouse visas, the exemptions we talk about. We discussed some of the issues about the overstays as well. And again, we'd like to tell the viewers that we had a number of calls on that one. We had a number of discussions on that topic, and we were, after the program, we got a number of calls again. So some of the calls we were not able to take because obviously the time is not allowing us. तो बस ये व्यूज़ हैं ये अगर आपकी कोई कॉल है, make it short, and we're trying our level best to discuss some of these issues with you in the program. As usual, Manager Program is very informative. It's an interactive program whereby we'll be discussing some of the issues. We're going to be giving news, and we're going to be taking your views as well, and giving the views about what is the situation with the rules and regulations. So last time हमने ये discussion में जो program में करा था, we will touch on that a little bit, but today is going to be a program about adult dependency and the relative settlement visa that we're going to be talking about that. So this is going to be the topical issue. So if you've got family members, अगर आप उनके grandparents or family members who are close, you want to bring them over, what are the rules, what are the requirements, उसका क्या होता है, we're going to be discussing that. और आज के program में, as usual, I want to welcome my colleague Shazia Anjum to the program. बहुत शुक्रिया, thank you so much. But Shazia, last week we discussed some of the issues, but आज के program में like अपने views को बताते चलते that we're going to be talking about the adult dependent relative settlement visa. So let me just tell a few things अपने जो नाज़रीन जो बैठे. So that's comes under the rule 317. ये जो हमारा program होता है, हमारे प्रोग्राम जो होता है ना is slightly different from some of the other programs जो आप देखते हैं. वहाँ पे calls आते हैं, we do the same thing as well. Calls आते हैं, उनका जवाब देते हैं. People have number of issues, they discuss it with us, and we give the answers in the program. But हमारे program में ये होता है, we're giving the rules, we're telling you about the law. हम थोड़ा सा generic information भी दे रहे होते हैं about some of the responses. But we're giving you most importantly what is the rules and where do people fit in a criteria together. So adult dependent relative, Jordan settlement visa, like I was saying, Rule 317 requirements for indefinite leave to enter or remain in UK as a parent, grandparent or other dependent relative. Those make categories होती हैं. I'm going to be discussing that with Shazia. तो पहले तो Shazia, before I come to you, ये आपसे discussion में लेके चलेंगे. तो पहले तो ये बताते चलें. So this has to be is it related to the person present and settled in the United Kingdom? So that was one of the things. Parent or grandparent who is divorced, widowed, single, separated, aged 65 or over. Then son, daughter, sister, brother, over the age of 18, if living alone as United Kingdom in the most compassionate circumstances. So ये चीज़ होती है, or is joined a competent person who is present settled in the United Kingdom. Yes. तो शाज़ी पहले तो ये चलते हैं. आप थोड़ा सा ये, let's just talk about Israel Jude, but number of questions there, number of people ring us that they have these family members in Pakistan. Yes. इस पे थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड है तो हम क्यों ये टॉपिक लेके so that people know it's important. बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन. आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि आपके जो एडल्ट डिपेंडेंट्स रिलेटिव हैं जो पाकिस्तान में हैं उसको आप किस तरह से यूके में बुला सकते हैं. इमिग्रेशन रूल्स 317 और इमिग्रेशन रूल्स 319 के तहत. तो आज के प्रोग्राम में एक्सटेंसिवली हम आपको इस चीज़ का बताएंगे कि आप कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अपने जो पेरेंट्स हैं, आपके जो एडल्ट डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स हैं, आपके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनको किस तरह से आप इस कंट्री में बुला सकते हैं. तो रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि उनको आपका शो करना होता है कि वो आपके रिलेटिव्स हैं. इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहली बात कि वो आपके रिलेटिव हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, या फिर आपके सिस्टर एंड ब्रदर्स एडल्ट्स डिपेंडेंट्स में आते हो. उन कैटेगरी में आप उन लोगों को यूके में 317 इमिग्रेशन रूल्स के तहत बुला सकते हैं. जी, थैंक यू शाज़िया. मैं आपसे डिस्कशन में ये लेके चल रहा हूँ. क्वाइट इम्पोर्टेंटली the rules regulations are the 318 indefinite leave to enter United Kingdom as a parent, grandparent, another dependent relative of a person that has to be
somebody settled person, पहले तो ये बताते चलें, the person we're talking about must be settled. That's the people we're talking about. So it could be British, it could be settled. तो बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता नहीं होता, वो ये समझते हैं कि शायद सिर्फ जो ब्रिटिश लोग हैं वही बुला सकते हैं. तो इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ना सिर्फ ब्रिटिश पीपल बल्कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जिनके पास है, जो सेटल्ड पीपल है, वो भी अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं. Let me get a call. शामिल कर दें. Welcome to Legal Matters. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी, ये जो प्रोग्राम आ रहा है मुझे इसमें बात करनी है. आप लाइव प्रोग्राम पे ही, आप अपना नाम बताएं, क्वेश्चन बताएं प्लीज. मेरा नाम निकट है. ओके, ठीक है निकट, आप अपना क्वेश्चन बताएं प्लीज. क्वेश्चन ये है कि अगर मेडिकल ग्राउंड पे पाकिस्तान से किसी को कोई बुलाना चाहे तो क्या प्रोसीजर होता है उसका? मेडिकल ग्राउंड, अच्छा. और आपकी क्या यहाँ की स्टेटस है? मैं ब्रिटिश हूँ. ये ब्रिटिश, ओके. एंड और जो आप मेडिकल मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट के हैसियत से बनाना चाह रही हैं? नहीं, मैं आई मीन मेरा ऑपरेशन होगा मेरी बैक का, मुझे ट्यूमर हो गया हुआ है, तो मैं अपनी भतीजी को बुलाना चाहती हूँ मेरी लुक आफ्टर करने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए. एज अ केयर, ठीक है, शुक्रिया. आपका क्वेश्चन आ गया. ओके, कॉल आ रही से शामिल कर दें. वेलकम टू लीगल मैटर्स. जी, वेलकम टू लीगल मैटर्स. हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई. कॉल आ रही से शामिल कर दें. वेलकम टू लीगल मैटर्स. कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम. आप अपना नाम बताएंगे? आप लाइव ऑन एयर. इब्राहिम, ओके. आप अपना सवाल बताएं. जी सर, वो ना मैंने वीजा अप्लाई किया था जी, ठीक है. स्पाउस अपना वो जो अपना वीजा अप्लाई किया था, मैंने पूछा था उसमें कितनी देर लगती है वीजा रिटर्न करने में उनको? जी इब्राहिम, आप ग्लासगो से बात कर रहे हैं. आप ये बताइएगा कि आपने ऑलरेडी वीजा कब अप्लाई किया था और कितना अरसा हो गया है आपको वीजा की एप्लीकेशन डालने? लास्ट वीक किया था. लास्ट वीक. और आपने कौन सी कैटेगरी में एप्लीकेशन भेजा था? आपने ह्यूमन राइट की बेसिस पे भेजा था या आपने वाइफ की बेसिस पे भेजा था? वाइफ की बेसिस. ठीक है जी, वाइफ की बेसिस पे इन्होंने एप्लीकेशन डाला था. और आपका जो अब आजकल जो टाइम ले रहे हैं वो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन हो तो वो 6 वीक्स में आपका रिप्लाई करेंगे. अगर 6 वीक्स में रिप्लाई नहीं करते तो हो सकता है कि वो 8 वीक्स से लेकर 12 वीक्स तक लगा दें. we haven't got a full details, so obviously we can't give him a specified time. कॉल आ रही से शामिल कर दो. वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स. कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने अभी कॉल की थी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी. अच्छा, आपका क्वेश्चन आ गया हमारे पास. हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे. आप टेलीविजन पे हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच एंड वी विल कम बैक टू दैट. सो अभी जो क्वेश्चंस आए, जो लोगों ने हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. हम आपको जवाब भी देंगे. पर अभी हमारा जो टॉपिक है, जो अगर कोई यहाँ सेटल पर्सन है या जिसके पास आईएलआर है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, उनका क्या है पोजीशन? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, रूल्स के मुताबिक, सो दैट यू अंडरस्टैंड वी आर गोना गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन. सो शाज़िया, ये 3 रूल 318 जो द इंडेफिनिट लीव, द पर्सन मस्ट बी present and settled. So इसी पे बात करें. तो आप ये भी डिस्कशन में हम ये कह रहे थे that it has to be settled, and not only that, it could be present indefinite leave to remain. इससे कंटिन्यू करें प्लीज. जी बिल्कुल. जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया है कि रूल 317 के तहत ये देखना होता है कि रिक्वायरमेंट उसकी क्या है. अब 318 के तहत उनको जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर उसका जो फैसला करेगा वो इंडेफिनिट लीव टू एंटर के लिए कंसीडर करेगा. जो आपके पेरेंट्स हैं उनको 5 इयर्स के लीव टू एंटर, जो कि इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, उनको 5 इयर्स का लीव टू एंटर मिलेगा इस कंट्री में. अब उसके लिए उससे पहले कि वो 318 का हम जिक्र करें, उससे पहले 319 का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसके तहत ये होता है कि ऐसी कौन सी डिपेंडेंसी है, कौन सी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, कौन सी कैटेगरी है जिसमें आप अपने पेरेंट्स को, जिसमें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं. तो उस रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, या जो भी आपका एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव है, उनको आपका डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. अब वो डिपेंडेंसी में आपने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस शो करने होते हैं. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस शो करने के लिए आपको ये दिखाना होता है कि वो आप पे होली या मेनली फिनेंशियली डिपेंडेंट है. आप उनको फिनेंसेस भेजते हो, वो आप पे फिनेंशियल डिपेंडेंट हो, वो आपके बगैर उनका वहाँ पे गुजारा ना हो रहा हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी ये शो करें कि वो आप पे डिपेंडेंट हैं, ना सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंट हैं बल्कि वो आप पे फिनेंशियल डिपेंडेंट भी हैं. अब फिनेंशियल डिपेंडेंसी के लिए आप प्रूफ ऑफ जो आपके रिसीट्स होते हैं, जो आप अपने पैसे भेजते हैं अपने पेरेंट्स को, आपने वो प्रूफ साथ लगाना होता है.
उसके अलावा आपने ये भी देखना होता है कि उनके केयर करने वाला वहां पे कोई नहीं है, उनको स्पेशल केयर की जरूरत है, उनके वहां पर मेडिकल ग्राउंड्स हैं, उनको वहां पे प्रोफेशनल केयरर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप ना सिर्फ ये है कि अपने फाइनेंशियल डिपेंडेंसी शो करते हैं, बल्कि आपने ये भी शो करना है कि उनको वहां पे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बेटर सर्कमस्टांसेस उनके लिए मौजूद है, यहाँ पर बेटर उनके हालात इस तरह से होंगे कि उनको प्रॉपर केयर मिलेगी। तो ये डिपेंडेंसी को शो करना बहुत जरूरी है। तो ये आते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। So let's just talk about, इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, so अपने जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, they'll understand what we're talking about. So exceptional circumstances क्या होते हैं? These are like they're no longer the physical and capable of looking after themselves, and it's more about the उसके बाद भी उनकी ये उनके पास जो maintain accommodation and जी, care उनको for, वहाँ पे लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, उनको प्रॉपरली मेडिकल ट्रीटमेंट फ्राहम नहीं हो रहा, उनको प्रोफेशनल केयर नहीं मिल रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे वो अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, या अगर कोई रिलेटिव उनको ऑलरेडी लुक आफ्टर कर भी रहे थे तो इस वक्त उनको लुक आफ्टर करने वाला वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अगर उनको वीजा ग्रांट ना किया गया तो उनके लिए ये हार्श जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको हार्श कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो आप इस पॉइंट पे अपनी एप्लीकेशन में डालेंगे। So in other words, हम आपको व्यूअर्स को बताते चलें, so this is rule 317, you are under the rule 317, that's immigration rule 317, has no relatives in their own country to whom they could turn to for financial support. ये भी है। Yes. So अपना उनके पास कोई support नहीं मिली, financial support is no longer there as well. This is very important. और medical care, sometimes medical care properly available inadequate, medical care की वजह से वहाँ पर उनको proper treatment नहीं मिल रहा होता। तो ये सारी चीजें जो है वो interchangeable है। Either उनको financial dependency है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, मेडिकली उनको वहां पर प्रॉपर केयर नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजों को एक जगह पे इकट्ठे करके उनको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को सबमिट करवाने होते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आएगा, आपका एप्लीकेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स में आएगा, आपका एप्लीकेशन में आएगा। Leave that one article, उस पे मैं बात करूंगा आपसे, but let's just carry on with this one. So financially independent, this is very important because यहाँ लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी को प्रॉपर्ली से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। You got to identify ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसमें उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। So yes, इसे कहते हैं specific requirements, जो specific requirements होते हैं नाज़रीन को बताते चलें, that when the Home Office and Immigration Rules clearly sets out its rules, you must fall in that category. You need to demonstrate, वो बंदे को demonstrate करना पड़ता है वो उस कैटेगरी में fit हो रहा है, and that's why we're talking about these, because if you're outside it, you will not be considered. So let's just carry on with that. Financial requirement and और जो ये हमने कहा dependency के, those are two very important, उनको ये दिखाना ज़रूरी है जब जाके वो अपना एप्लीकेशन को exceptional circumstances में consider होंगे to the। एक यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ नाज़रीन के लिए, वो ये है कि जब आप अपनी financial dependency शो करते हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि आपने अपनी financial dependency, जरूरी नहीं है कि 100% आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो। समटाइम ये होता है कि वो आप पे डिपेंडेंट है, मेनली आप पे डिपेंडेंट है, तो अगर वो आप पे मेनली डिपेंडेंट है तो फिर भी उस कैटेगरी में आ जाता है। कॉल आ रही से लेते हैं। वेलकम टू लीगल मैटर्स, you're live on program. Hello. Let the call drop again. Do apologize. Please feel free to contact us. We're an interactive program. We'll be discussing anything to do with legal issues. You feel free to contact us. तो कॉल आ रही से शामिल करते हैं। वेलकम टू लीगल मैटर्स। हेलो, कॉल बार बार ड्रॉप हो रही है, देयर इज सम इशू, वी डू अपोलोजाइज, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। सो शाजिया, लेट्स कैरी ऑन नाउ। So ये जो accommodation के जो let's just carry on with that one, yeah? So that is important. जी, अच्छा, ये आपने जो शो करना है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला रहे हैं और आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप खुद तो बेनिफिट्स पे हैं, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस अच्छे हैं और आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं। कॉल ले लें आप। जी, कॉल लेते हैं। थैंक यू फॉर दैट। वेलकम टू लीगल मैटर्स। कौन कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम बोल रहा हूँ वेकफील्ड से। वसीम भाई, वेलकम टू आवर प्रोग्राम, यू लाइव ऑन प्रोग्राम। आप अपना क्वेश्चन बताएंगे प्लीज। जी, ये नेशनलिटी के जरिए के बारे में पूछना था कि जी
कोई रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, लाइफ रूल्स तो हमेशा चेंज होते रहते हैं जी। रूल तो फीस के बारे में भी चेंज होते रहते हैं। रूल्स आपके नेशनैलिटी, आपके करेक्टर, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके सिलसिले में उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। फिर रूल्स आपकी नेशनैलिटी के, जब ब्रिटिश के जब ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन के लिए स्पेशल जो रेगुलेशन और रूल्स बनाए जाएंगे उसके तहत भी वो नेशनैलिटी के रूल्स चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल रूल चेंज हो सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। थैंक यू। मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हम लाइफ इन यूके अब कर लें और इंग्लिश टेस्ट वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो दोबारा वो फिर एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर या? ऑफ कोर्स या वो देखिए जी, अभी तक जो रिक्वायरमेंट है वो लाइफ इन द यूके जो है वो आपका फॉर एवर है और आपका फॉर लाइफ है। अभी आप जो लाइफ इन द यूके करेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा। जिस वक्त चेंजेस आएंगी उस वक्त आपको वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम देंगे जिसके तहत आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके अंदर आप अपने नए कोर्सेज कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप अगर आप लाइफ इन द यूके करते हैं वो एक्सेप्टेबल है। इन फ्यूचर अगर चेंजेस आती हैं तो वो आपको उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। But the rules are very clear, but that is part of the nationality. उसमें you cannot उसमें बिल्कुल बंदे उसमें से cannot be exempted that one. That is a must at the moment. कॉल आने से शामिल करते हैं। Welcome to our legal matters. कौन कहाँ से? Hello. कॉल ड्रॉप हो गई। Just coming back, जो हमारी अकोमोडेशन की हम बात कर रहे थे, अकोमोडेशन की बात में ये है कि आपके पास इनफ अकोमोडेशन अवेलेबल हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करना आपका काम है। आप गवर्नमेंट पे बोझ ना बने, आप पब्लिक फंड्स पे बोझ ना बने, और आप उनको मेंटेन कर सकते हैं, आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, ये शो करना आपका काम है। उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, आपके पास अवेलेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं अवेलेबल है तो हमारी ये एडवाइस होती है कि आप उनके लिए एक अलग से घर लें, उसके लिए आप अकोमोडेशन रिपोर्ट बनवाएं और वो जो प्रूफ है वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ आपने अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी शो करनी है, ना सिर्फ आपने उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी शो करनी है, बल्कि आपने उनकी अकोमोडेशन और मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी लेनी है। कॉल आ रही है, शामिल करते हैं। वेलकम टू आवर लीगल मैटर्स। कौन कहाँ से? Oh yeah, I just wanted to ask you a question because basically I've sponsored my mother from India, obviously. Okay. And under ADR. Okay. The visa is being refused there under the third requirement, which says the relationship. Relationship, yeah. Were you not able to establish it? Have you submitted your birth certificate when you submitted your application? No. The thing is, under the relationships, there are like 3-4 different requirements. The first one is like, they actually accepted that I was, obviously, I'm the son of a lady. Yes. And she's really, really badly ill. She had she's been through 3 brain tumor operations, and she's dependent on me. But we went to an appeal as well last month with the solicitor, which is a very well-known solicitor in London. Okay. And but the appeal, the judge, basically they refused. They said she can be cared for. Cared in India as well. Obviously, if you got money, obviously. जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और उसमें ये होगा कि डेफिनेटली आपने आपके सोलिसिटर ने इतना स्ट्रांगली उस केस को पुट नहीं किया होगा अपर ट्रिब्यूनल में या फर्स्ट ट्रिब्यूनल में आपकी जो अपील लगी थी उसमें आपको ये एक साइंस नहीं है जिसमें आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे, या ये एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आप वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस केस में आपको हर केस में केस टू केस आपको सिनेरियो सेटअप करने होते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्लाइंट को एडवाइस करना होता है कि ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस शो करते हैं, आपकी मदर की डिपेंडेंसी आप पे शो करते हैं और उनको कोई आपके कंट्री में कोई और लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो होली और मेनली आप पे डिपेंडेंट है और वहां पर अगर उनको वीजा ग्रांट ना किया गया तो शी विल बी इन वल्नरेबल पोजीशन एंड योर ह्यूमन राइट्स विल बी ब्रीच्ड। ये आपको प्रूफ करना होता है प्रॉपरली। आपका अगर केस आर्गुमेंट नहीं किया गया तो फिर कोर्ट वाज राइट टू रिफ्यूज योर अपील। तो मेरे लिए आगे ऑप्शन क्या है? Okay, this is good. Tarzan got bad. Thank you. Can we have your name? आप अपना नाम बताते चलें. Can we have your name? Yeah, it's Ram. Ram. Okay, Ram, just keep watching the program. Obviously, we got a number of calls coming through. Our question is very related to the topic we're talking about.
And जिस तरह हमने प्रोग्राम में अभी मेंशन करा है, the criteria is very clear. The 317, the 318 rules of immigration के आपके जो barrister है, the solicitors, they will advise you now. You need to be demonstrating absolutely clearly that उस category में fit होते हैं. This is why we're talking. आज के प्रोग्राम में इसी टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, because number of people are in this kind of situation. So शाजी अभी आप जो accommodation की जो बात कर रहे थे, and that one is it has to be demonstrated, and also that you cannot rely on public resources and funds. This is very important. अकोमोडेशन की बात है, और इसके साथ ही साथ जो अभी क्वेश्चन पूछा था हमारे व्यूअर्स ने, उसमें ये इंटरलिंक्ड है. अभी देखें कि आपने बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स तो जमा करवा देते हैं, अपनी अकोमोडेशन के भी जमा करवा देते हैं, डिपेंडेंसी के भी जमा करवा देते हैं, लेकिन राइट डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना और राइट आपके जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको शो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम यही तो बात है, स्पेसिफिक एविडेंस जो देने they need to fulfill that criteria. जी. और अगर आप ये शो करते हैं कि वहां पर आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो आप के पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं और आप भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, they will definitely refuse your application. Absolutely. So the key thing is that there's nobody else जो उनको लुक आफ्टर कर सकता है. There's nobody there who's going to take care of him, and there's an issue about और अगर उनको वीजा ग्रांट, जी बिल्कुल, और अगर उनको वीजा ग्रांट नहीं किया गया तो उनके लिए हार्श कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. ये शो करना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारे अक्सर लोग नहीं करते इस चीज को शो, और वो समझते हैं कि शायद ये वीजा जो है वो फॉर ग्रांटेड मिल जाएगा. ये वीजा फॉर ग्रांटेड नहीं होता, और आपको इसको प्रूव करना पड़ता है. आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रूव करने पड़ते हैं. इसके सिलसिले में बल्कि एक केस लॉ था 2009 में, ZB वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसमें ये कहा गया था कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से कि अगर आपकी जो असेसमेंट है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के, वो आपको इमोशनल डिपेंडेंसी से भी बियॉन्ड उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. So let me bring that on. That's a proportionality जो केस की जो adult and dependent relative case law में जो था. So you just mentioned that. Now this is the whole thing. Let's just talk about एक और भी case law there, the 2015, which was this was to do with core, and it was an appellant who was 83 years of old, widowed mother of the sponsor. Yes. This is an example जहाँ पे upper tribunal find it that family life was engaged. इसमें उन्होंने क्या था, family life engaged हो गई, which is Article 8. Call आ रही है. Let's just come back to that question in a minute. Welcome to our legal matters. कौन कहाँ से? Hello. Call drop हो गई. Yeah, just carry on with that. So जो अभी हमने जो केस लॉ के जो बारे में मैंने आपने भी मेंशन करा ना, आर्टिकल 8 का जो आर्टिकल 8 is very important, that's 2015. Right. Before we go there, कॉल ले लेते हैं. आप कॉल ले लें. Welcome to our legal matters. वालेकुम सलाम. आप लाइव इन प्रोग्राम है, अपना नाम बताएंगे प्लीज. जी मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ. चलो ठीक है, ओके, क्वेश्चन बताएं. जी मेरे बच्चों ने मेरी बहू सी था, वो मैं पाकिस्तान से मंगवाई सी था, उसके साथ दूसरी कोई फ्रेंड आ गई तो उसका वीजा तोड़ दिया, और जो मेरे बहू की वाइफ सी था उस दूसरी फ्रेंड ने उसका तोड़ दिया था, वो अभी परेशान ही, तो उसने कुछ प्लेस की भी रिपोर्ट नहीं सी की, कुछ भी नहीं, 1 साल हो गया. आप अपना क्वेश्चन करें. जब आप ये बात कर रहे हैं कि उनका जो वीजा है वो तोड़ दिया, आप किस कैटेगरी में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? और we need to know. आप अपने क्वेश्चन तो बताएं. वो वीजा तो आप कहने टूट गया है. आप किसके बिहाफ पे क्वेश्चन कर रही हैं? आप फ्रेंड के बिहाफ पे कर रही हैं या आप अपनी डॉटर इन लॉ के बिहाफ पे कर रही हैं क्वेश्चन? आप वीजा के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल. आप बताएं आपका सवाल क्या है? क्वेश्चन बताएं ना प्लीज. आप अपना सवाल बताएं. सवाल क्या है आपका? वीजा टूट गया मेरी बहू का, क्योंकि मेरे बेटे ने खत लिख दिया. राइट. तो अब आप क्या है, अब आपका क्या क्वेश्चन है? उसकी मदद करना चाहती हूँ. राइट, वी अंडरस्टैंड. सो मतलब स्पॉन्सर आपका बेटा था, and she's in खत लिख दिया था, उसकी मदद करना चाहती हूँ. उसके जो धमकियाँ मिली रही मेरी उस बेटे की फ्रेंड की तरफ से. आपका सवाल हमारे पास आ गया है, आप टेलीविजन देखें, हम आपको सवाल का जवाब देंगे, आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं. जी शाजी, we'll come back to that one question about help. मगर अभी कॉल लेते. Welcome to our legal matters. कौन कहाँ से? जी वेलकम टू लीगल मैटर्स. आप अपना क्वेश्चन बताएंगे प्लीज. And your name? अस्सलाम वालेकुम जी, रेडियो से बात करूं. वालेकुम सलाम. वेलकम टू आवर प्रोग्राम. आप कौन सा बोल रहे हैं?
रिश्ता इजाज बोल रहा हूँ जी, यूके से। ठीक है इजाज साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी मुझे 17 साल हो गए यहाँ पे। ठीक है। और मेरा जो वीजे है वो उन्होंने 10 ईयर रूट दिया है। 10 ईयर रूट, ओके। तो उसमें यह है कि आफ्टर 2.5 ईयर मुझे एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। ये मेरी 3rd जाएगी इस दिसंबर को। ठीक है। इसमें ये है कि बच्चों के, एक बच्चा यूनी पढ़ता है, उसका यूनी लोन नहीं होता है, जो उसकी प्राइवेट फीस भरनी पड़ती है। ठीक है, राइट। और सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि साल से तो बस ये हाउस रेंट भी बैलेंस पड़ा हुआ है, शॉप का भी रेंट बैलेंस पड़ा हुआ है। अभी आपका क्वेश्चन क्या है? आप ये पूछना चाहते हैं कि आपको कब इंडेफिनिटली मिलेगा? करवाना चाहता हूँ इसकी स्टूडेंट लोन जो है, लोन के बारे में ये ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें मुझे कोई जी बिल्कुल आपको बताएंगे इजाज भाई, थैंक यू एग्जाम्पशन के बारे में बिल्कुल आपने बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन आगे। शायद वी गोना बी गोइंग फॉर ब्रेक इन अ फ्यू मिनट्स, तो जो अभी क्वेश्चंस आए तो उनके भी जवाब भी देंगे, बट लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद आवर प्रोग्राम। तो ये जो अभी केस जो मैं बता रहा था, आर्टिकल 8 कोर केस लॉ की आर्टिकल 8 2015 बिल्कुल, जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो एडल्ट चाइल्ड है उनके अगर पेरेंट्स को वीजा नहीं मिलता तो वो भी जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। इसलिए ये विजिट वीजे के बारे में अपील थी और वो अपनी मदर को यहाँ पे बुलाना चाह रही थी जो कि 83 इयर्स ओल्ड विमेन थी। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब वो वीजा रिफ्यूज हुआ तो कोर्ट ऑफ अपील ने उनकी फेवर में इस पॉइंट पे कर दिया कि जो एडल्ट चाइल्ड है, जिस तरह से ओवर 18 है, वो अपने पेरेंट्स को इस मुल्क में बुलाना चाह रहे हैं तो उनका रिफ्यूजल उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगा। तो उस सिलसिले में भी जो फैमिली टाइप जो आप लोगों के हैं वो बिल्टअप हो जाते हैं। तो यही जो एक रीजंस है, ये जो कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजंस है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एडल्ट डिपेंडेंट पे हर किस्म की एप्लीकेशन पे आप आर्गू कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि वो विजिट वीजे के लिए आप अप्लाई करें अपने पेरेंट्स के लिए, बल्कि जब आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए उनके लिए अप्लाई करते हैं फिर भी आप ये इस चीज को आर्गू कर सकते हैं कि वो आपके फैमिली राइट इससे मुतासर होते हैं। And that's the whole purpose of the, ये हमारे बात करने का मकसद ये था मेरा, so that you can understand that why this Article 8 and the 2015 because Article 8 और जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनको आपस में कंपैटिबल करके आप अपने आर्गुमेंट्स को That's right, and we're talking about the जो मैंने केस लॉ का मेंशन करा, that was core उसके बारे में था, and that was in the upper tribunal 2015 में upper tribunal, yes. upper tribunal में डिसाइड हुआ था। So let's just carry on with the topic now. इसके अलावा शाज़िया, आपको पता है यहाँ पे जो लोग होते हैं जिनको रेफ्यूजी स्टेटस होती है उनका भी यहाँ पे राइट्स हैं। So let's just talk about that. The refugees, अभी जिस तरह से हम डिपेंडेंट्स रिलेटिव पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स पेरेंट्स हैं वो ना सिर्फ ये कि सेटल्ड पर्सन, ना सिर्फ ये कि ब्रिटिश सिटीजन पर्सन के पेरेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं, बल्कि सिमिलर वे से लाइक वाइज जो रेफ्यूजीज हैं इस मुल्क में वो भी अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं। रूल 319 ऑफ इमिग्रेशन रूल्स इस चीज को कवर करता है कि आप अपने पेरेंट्स को इस मुल्क में बुला सकते हैं एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स के तौर पे, उनको डिपेंडेंट financial, बिल्कुल सेम this is what we're talking about. सारे रूल्स सेम होंगे, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंसी की सेम होएगी, लेकिन फर्क सिर्फ ये होएगा कि जो असाइलम सीकर है यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं यहाँ पर, और उनको 5 साल का लीव टू एंटर नहीं मिलेगा, उसके बजाय उनको 2.5 years का लिमिटेड लीव टू रिमेन मिलेगा और वो अपनी फैमिली को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और फैमिली रीयूनियन में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है और आपको प्रॉपर रिलेटिव एविडेंस लगानी पड़ती है। अगर आप उसमें से कोई एक भी मिस कर दें तो आपका स्ट्रेट रिफ्यूज हो जाता है। सो वीज़ा को बताते चलते, यस ठीक है, वीज़ा को ये बताते चलेंगे। सो अभी के जो प्रोग्राम है हमने जो डिस्कशन लेके चले, दैट्स बीन सेटल्ड पर्सन, indefinite leave to remain, उनके बारे में वो भी mention करें, refugees. So any of these 3-4 people जो categories में they can bring the parents, grandparents over, providing जिस तरह हमने प्रोग्राम में ये discussion जो हो रही है that you need to show dependency, financial dependency. ये टॉपिक जो हमारा होगा अभी कंटिन्यू करेंगे। Now we're going to the break. Exceptional circumstances हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने we'll be back in a moment. Call Ari, we're going to take that in a moment. We're going for a break. We'll be back within a few minutes to our program. So join us back in a few minutes.